ਦੇ ਸਾਗਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਦਰ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ
जे उनका संग करे, भाव उनकी संगत करे तो वह धर्मी बन जाएगा। बाबा फरीद जी केवल निक्की जी उम्र दे सन, बहुत छोटी उम्र सी उन्होंने। बच्चों में रोज़ खेडते ने। एक दिन माँ ने जाके आख्या, बेटा ये केवल दुनिया दे विच जीवन खेडां खेडण वास्ते नहीं मिलिया, ये जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन नूं सफला करन दा भी कुछ समा कढिया कर। बच्चा सी, प्यार नाल समझाया, पर रोज़ अपनी माँ नूं वेखदा है। माँ 5 वक्त नमाज पढ़दी सी। माफ़ करना, अज तो असीं जपजी साहिब भी भुल गए हाँ। जिमें जिमें बंदे कोल दुनिया की दौलत शौहरत आती जाती, जो बंदा गरीब हुंदा है ना, उदों 5 बाणियां भी कर लैंदा, नाल सुखमनी साहिब भी कर लैंदा। मैं आप वेखिया, जिमें जिमें बख्शिश होंदी जाती, दुनिया की दौलत शौहरत आती जाती है, फिर बंदा 5 बाणियां, फिर 4 बाणियां, फिर 3, फिर 2, फिर जपजी साहिब। फिर एक समा ऐसा भी आता, बंदा कहता मेरे को टाइम ही नहीं हैगा। हुण गुरु कृपा करे कि मनुख जिथों ये दात मिली उहदे नाल जुड़िया रहे। वो छोटा जिहा बालक बाबा फरीद जी अपनी माँ नूं रोज़ वेखदे ने, 5 वक्त नमाज पढ़दी है। तो एक दिन पुछ लिया, माँ ये तू की करदी है? तो माँ ने आख्या, बेटा मैं खुदा की इबादत करदी हाँ। हुण बच्चा सी पुछ लिया, माँ जे खुदा की इबादत करिए तो की मिलता है? हुण सानू कोई बंदा पुछ लवे भी आपां पाठ करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, सतसंगत करते हैं, इहदे नाल की मिलता है, की प्राप्त होंदा है? हुण बहुतायतां दा जवाब यही होएगा भी दुनिया के पदार्थ धन दौलत मिलती है, पर नहीं प्यारिओ, बाणी विचों जीवन जिउण दा सुचज्जा ढंग मिलता है भी जीवन किहो जिहा होना चाहिए। खैर बच्चे ने सवाल किया माँ नूं, माँ खुदा की इबादत करन नाल की हासिल हुंदा है? ते हुण माँ ने वेख लिया भी बच्चा है, उन्हें आख्या, पुत्र जे खुदा की इबादत करिए तो जो मंगीए खुदा कोलों मिल जाता है। बच्चा सी, हुण बच्चे की मंग किन्नी कुं हुंदी है? खाण दीयां चीज़ां या खिडौणे, इन्नी को मंग हुंदी बच्चे की। जिमें जिमें बंदा वड्डा हुंदा जांदा, फिर मंगां भी वड्डियां हुंदियां जांदियां ने। वो छोटे खिडौणे ਜਿਹੜੇ निक्कियां निक्कियां कारां सन, फिर जिवें जिवें वड्डा हुंदा फिर वो वड्डियां कारां विच तब्दील हो जांदे है। वो भी खिडौणे ही ने, पर समा ते चीज़ां बदल जांदियां ने। होया कि कह लगे बाबा फरीद जी ने ये आख्या, माँ जो मंगीए मिल जाता है? कह लगे हाँ जो मंगीए मिलता है। खुदा की देवेगा? हुण उन्हां समयां विच जदों बाबा फरीद जी सन ना, ते उदों खाण दीयां चीज़ां घर दे विच शक्कर, खंड, शहद, दुध, घ्यो, ये चीज़ां होया करदियां सन। हुण जदों आखिया भी माँ की मिलता है, उन्हें आख्या, पुत्र खाण दी चीज़ जेड़ी तू मंगेगा तेनू मिलेगी। उन्हें आख्या, अच्छा मैं भी कल तो नमाज पढ़ांगा। बालक सुभाअ सी। अगले दिन जदों खुदा की इबादत में जुड़िया, वेखो माँ कितनी चंगी है। माँ ने की किया, जिस मुसल्ले ते बैठ के वो पढ़ते सन पे नमाज, उनके बिल्कुल थले लागे लिजा के थोड़ी जी शक्कर रख दी। जदों बाबा फरीद जी ने अखां खोलियां, वेख्या भी खाण की चीज़ पई है, विश्वास बन गया। पहले दिन ही भरोसा बन गया भी खुदा की इबादत करिए तो कुछ हासिल होंदा है। माँ भी चाहती सी मेरे बच्चे का विश्वास पक्का होवे, इबादत दे विच भरोसा बने। और सच जानियो, कई बारी बच्चा कि वड्डा भी अगर बार बार एको चीज़ खाई जाए तो मन भर जाता है। बालक सी। अगले दिन फिर नमाज पढ़ी, माँ ने थोड़ी शक्कर रख दी। कह लगे माँ कि रब एको ही चीज़ रोज़ देंदा है? कह लगे नहीं पुत, जे 2 नमाज़ां पढ़ेगा तो रब फिर चीज़ बदल के देवेगा। अगले दिन 2 नमाज़ां पढ़ियाँ, फिर थोड़ा शहद रख दिता, फिर 3 नमाज़ां पढ़ियाँ, फिर 4 लग गए पढ़न, फिर 5 नमाज़ां पढ़न लग गए नित। ते माँ जदों नमाज पढ़ के अखां खोलियां, पहला ही माँ ने चोरी जी भांडे विच पा के खाण दी चीज़ रख देनी। ये वेखो किवें धर्म दे नाल, किवें मालक नाल जोड़िया जांदा है।
कहन लगे जदों वो 5 नमाज़ां पढ़न लग गए, एक दिन ऐसी खेड वरती, इबादत करदियां करदियां मन मालक नाल इन्ना जुड़ गया, रस आया। अज माँ जिहड़ी आ वो रखना भुल गई चीज़। जदों बाबा फरीद जी दियां अखां खुलियां तो माँ नूं चेता आया। माँ ने सोचा भी किते मेरे पुत्र दा विश्वास ना टुट जावे। उन्हें उस वेले आवाज़ मारी, पुत्र फरीद अज खुदा तेरी खान की चीज़ मैनू रसोई विच ही फड़ा गया सी। अगों हस के बाबा फरीद जी ने आख्या, माँ तू किन्नी चंगी है, तेरा झूठ भी किन्ना चंगा है कि मैनू मालक की इबादत नाल जोड़ दिता है। तू किन्नी चंगी है, तेरा झूठ भी जिहड़ा सी वो मैनू मेरे मालक नाल जोड़ गया। माँ हुण मैनू उन्हां चीज़ां की लोड़ नहीं, क्योंकि जिहड़ा रस मैनू खुदा की इबादत विचों आया है वो रस इन्हां चीज़ां विच नहीं। बाबा फरीद जी ने उत्थे फिर बचन उच्चारण किए, शक्कर खंड नवात माखियों माझां दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। दुनिया अंदर बड़ियां मिठियां चीज़ां ने, पर रब दे नाम वर्गी मिठी चीज़ दुनिया विच कोई नहीं हैगी। जिहड़े जपदे ने ना, जिहड़े बाणी पढ़ते ने, जिहड़े बाणी विचों रस लैंदे ने, उन्हां नूं कदी पुछ के वेखो कि जो मिठास बाणी विच है, जो सिमरन विच है, जो नाम विच है, वो दुनिया की किसी चीज़ विच नहीं। जो सुकून बाणी पढ़ के सिमरन करके सतसंगत करके मिलता है, वो दुनिया विच होर किसी चीज़ विचों नहीं मिल सकता। सतगुर पातशाह जी ने बड़ी किरपा की है साडे ते कि सानू ये सतसंगत बख्शिश की है। जिन्हां दा जीवन जिहड़ा है वो मलीन सी, भैड़ा सी, विकारां दे नाल भरिया होया सी, सच जाणियो गुरु की संगत करके उन्हां दा जीवन भी जिहड़ा महान ते उच्चा हो गया। किसी शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया, वो कहंदा कदी गुरु नानक दे दर ते आके वेखी कि गुरु नानक दे महाराज पातशाह जी ने किन्नियां रहमतां ते किन्नियां बख्शिशां दुनिया ते कीतियां ने। वो कहंदे नदरे करम से गुरु नानक जिधर इशारा कर दिया। गुरु नानक दे महाराज जी ने बस एक रहमत भरी नज़र जिंदे ते पा दी ना, वो साडे विचों कोई भी हो सकदा जी। सिर्फ एक नज़र जिंदे वाल तक के गुरु नानक साहब पातशाह जी ने वेख लिया ना, तो जिन्हें गुरु नानक साहब की संगत कर ली, सच जाणियो गुरु प्यार वाले हो, उनका जीवन किहो जिहा बन जाता है। वो शायर कहंदा नदरे रहमत से जिधर गुरु नानक इशारा कर दिया, कतरे को जर्रा किया दरिया को सागर कर दिया। वो कहंदा निक्के जे एक कतरे नूं उन्हें बड़ा बड़ा जर्रा कर, निक्के जे दरिया नूं सागर बना दिता गुरु नानक देव जी ने। अगे वो बड़ी वधिया गल लिखदा, वो कहंदा सज्जन भी सज्जन हो गया। सज्जन ठग सी ना, जिदन गुरु नानक देव जी की संगत की ठगी अंदरों खत्म हो गई सी, वाकई सज्जन बन गया सी, भाई सज्जन बन गया सी। सज्जन भी सज्जन हुआ दैंत साधु बना। कहन लगे भलिया दैंत भी इत्थे साधु, राक्षस बिरती वाले लोग भी जिहड़े ने वो साधु बन गए सन, रब का रूप हो गए सन। कदी गुरु नानक देव महाराज जी ने पूछया सी जोगियां ने, सिद्धां ने, कि ए नानक जी आ जिन्नी दुनिया है तुहानूं नमस्कारां करदी है, तुहाडे अगे मत्थे टेकदी है, वड्डे वड्डे योगी सिद्ध पुरुष तुहानूं नमस्कारां करदे ने, कि दुनिया विच कोई ऐसा मनुख है जिंदे अगे ए नानक जी तुहाडा सीस चुके। तो उदों बड़ा प्यारा जवाब दिता सी गुरु नानक देव जी ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने बलिओ चिराग अंधियार विच लिखिया, वो कहंदा बाबे नानक ने आख्या भलिया मेरा सीस उस अगे झुकेगा जिंदा सीस उस मालक अगे झुक जाएगा। जिंदा सीस मालक अगे झुकेगा, बाणी अगे झुकेगा, मेरा सीस उनके अगे झुक जाएगा। याद रखना जिदन बाबा लैणा जी गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी अनुसार अपना जीवन जिउण लग पे सन, उस दिन बाबे नानक ने बाबा लैणा जी अगे मत्था टेक दिता सी। सिर्फ गल यह है कि आपां संग किहो जिहा करना है।
जे आपां गुरु की संगत का संग करांगे तो याद रखना गुरु नानक देव जी की रहमत जिहड़ी है वो साडे ते हो जाएगी, बख्शिश साडे ते हो जाएगी। उन्दियां रहमतां ते उन्दियां बख्शिशां नाल अपनियां झोलियां भर के ले जावांगे, साडा जीवन तब्दील हो जाएगा। एक निक्की जी घटना कह के समाप्ति करा, समा हो गया। एक नौजवान बच्चा अज दुनिया दे विच साडे कोल आधुनिक साधन होने कारण, दुनियावी ज्ञान बहुता होने कारण अज साडे कोल तर्क भी बड़ा वड्डा है। अज जिहड़ी भी गल आपां करदे हां ना तर्क दे संदर्भ विच करदे हां, जिहड़ी भी गल करनी होए तर्क नूं अगे रखिया फिर गल करदे। बाणी क्यों पढ़नी चाहिए, सवाल ही पुठे करते हैं बंदे। सिमरन क्यों करना चाहिए, कई तो यह भी कहिंदे भी ये बार बार रिपीट करने वाला काम है। तो मैं कहना हुन्ना साह क्यों बार बार लेंदे जी, एक बारी ले लवो। भोजन क्यों रोज़ करते जी, इक्को बारी भोजन कर लो फिर सारी जिंदगी एवं लंघ जाए। जे तू भोजन बार बार छकदा है, जे तू पानी बार बार पीना है भलिया, जे तू श्वास बार बार ले रहे हैं तो तेरा जीवन चल रहा है, तो फिर तू ये क्यों कहना भी सिमरन बार बार क्यों करदा, तू बाणी बार बार क्यों पढ़दा। ये तरकी बुद्धि है। और नौजवान पढ़ाई करने वास्ते शहर चलिया, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं सन, सोचा औलाद नूं चंगी सिक्ख्या देवांगे, पढ़ लिख के अगे तरक्की करेगा। हुण नौजवान जदों तुरन लग्या उन्हें बैग पैक किया, पिता ने पूछ लिया पुत्र सारा समान रख लिया, कहने लगा पिता जी हाँ मैं रख लिया। कहने लगे पुत्र मैनूं लगदा नहीं तू कुछ भुल रहे हैं। अगों जवाब दिता, कहने लगे पिता जी तुहाडे वाले जमाने गए, यही कहते ना अजकल के बच्चे भी तुहाडे वाले जमाने गए, हुण तां आधुनिक साधन आ गए ने, वो जमाने हुण गए। पिता जी मैं एक एक चीज़ लिख के ते फिर विच रखीए। ते पिता भोला सी, कहने लगे पुत्र मैनूं लगदा तू कुछ भुल रहे है। तो वह जदों गल आखी पिता ने तो उन्हें आख्या पिता जी नहीं मैं कुछ नहीं, मैं हर चीज़ रख ली है। तो पिता ने आख्या जपजी साहब का गुटका रख लिया। तो अगों पुत्र ने आख्या पिता जी पढ़ाई करन चले हाँ, उच्ची को ग्रंथी सिंह थोड़ा बनन चले, को पाठी सिंह थोड़ा बनन चले। मैं तो उच्च विद्या उच्च डिग्री हासिल करने वास्ते चले, पढ़ाई हासिल करने वास्ते चले, मैं को उत्थे ग्रंथी पाठी को रागी थोड़ा बनन चले। तो पिता ने आख्या पुत्र मैं ये तो तेनों आख्या नहीं तू ग्रंथी रागी पाठी बनी, मैं तो सिर्फ इन्ना आख्या तू जपजी साहब का गुटका रख लिया। हाँ जी पिता जी जे तुसी कहते हो तो मैं रख लेना। हुण पिता ने एक गल समझा दी, पुत्र मैं तेनों ये नहीं कहता भी तू बाणी पढ़ी या ना पढ़ी, पर एक गल मैं तेनों कह देना तेरी जिंदगी विच कदी सब तो औखा समा आवे ना, बस इस गुटके साहब नूं खोल के दे दर्शन कर ली, तेनों हल मिल जाएगा, तू उस मुश्किल विचों निकल जाएगा। नौजवान ने गुटका साहब रख लिया, शहर पढ़न वास्ते गया। जदों शहर गया होस्टल विच रहन लग गया, भैड़ी संगत मिल गई, भैड़े लोग मिले, भैड़ी संगत मिली, उन्हां विच रह के केस कतल करा ले, नशे लग गया करन, भैड़े राह ते तुर पिया। कॉलेज विचों भी फटकारां पैन लग पियां, ना कटिया गया। ऐसा समा आया दोस्तों ने भी उन्होंने अपने कोल बिठाना बंद कर दिता, ऐसे हालात बन गए। हुण उहदे मन विच इन्नी मायूसी इन्नी निराशा सी ना, इन्ना उदास सी, वो कहंदा मैं तो अज मर ही जाना है, मैं रहना ही नहीं दुनिया विच। कॉलेज विचों मैनू कढ़ दिता है, जिहड़ी फीस माँ बाप भेजते सन मैं उन्हां दे नशे करदा रहा, भैड़े पासे वरतदा रहा। अखीर उन्हें आख्या भी मैं दुनिया विच रहना ही नहीं। कमरे विच आया, जिहड़ी पग कदी पिंडों बन के आया सी शहर, उस पग नूं पखे ते बन्निया, गल विच लगा पाउण ते सामने जपजी साहब दा गुटका पिया सी। याद आ गया, पिता ने आख्या सी जिंदगी विच सब तो औखा वेला आवे ते जपजी साहब दा गुटका खोल के वेख लई। कह लगा मर ते जाना ही है, पर घट्टो घट पिता दी उस गल नूं याद करके केवल पिता दे बचना ते कहरा देदा, उन्हें गुटका साहब खोलिया, जिवें दीदार कीते सब तो पहला बचन पढ़िया, एक ओंकार सतनाम
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जदों ये दर्शन किते ददार किते हिरदे नूं सुकून मिलिया आराम मिलिया। रात नूं सुता रज के सुता बेफिक्र हो के सुता। सवेर हुई गुटका साहब लिया तो प्रिंसीपल दे कोल चला गया। जदों गया तो प्रिंसीपल वेखदे गुस्से दे नाल कहंदा तू फिर आ गया, तेनू आख्या सी तेरा नाम कट दिता तू चला जा। तेरे वर्गे भैड़े इत्थे बच्चे नू रख के असीं अपने कॉलेज का माहौल खराब नहीं करना, तू चला जा। उन्हें आख्या ठीक है मैं चला जावांगा, बस एक गल मेरी सुन लो, मैं एक सिफारिश लैके आया। प्रिंसीपल ने आख्या तेरियां किनियां सिफारिशां तू लैके आया, पर तू सारियां सिफारिशां झूठियां, एक भी वार तू जिहड़ा कहने विच नहीं आया। हुण किहड़ी सिफारिश रह गई है? गुटका साहब अगे कर दिता, कहण लगा सब ते वड्डा सतगुरु नानक। जदों गुटका साहब अगे कीता प्रिंसीपल ने गुस्से विच आख्या मूर्खा तेनू पता है तू किंदी सिफारिश लैके आया? वो कहण लगा कल तक नहीं सी पता, पर रात जदों खोल के दीदार कीते पता लग्या कि दुनिया दे अंदर जदों सारे रस्ते बंद हो जाण ते बाबे नानक दा दर खुला। जदों बाबे नानक दे दर ते आ जावेगा उतों फिर मायूस ते निराश हो के नहीं जावेगा। मैं बाबे नानक दे दर तो ये उपदेश हासिल कर लिया। मैं बाबे नानक दे गुटके ते सौं खाना हथ रख के अज तो बाद कदी भैड़ा काम नहीं करांगा, बस एक मौका दिओ। प्रिंसीपल ने आख्या ठीक है, याद रखना वही बच्चा मुड़ तो दोबारा गुरसिੱਖੀ विच आया, बाणी दा संग कीता, गुरु ने कृपा की, जीवन बदल गया। अज वो बच्चा जदों स्कूल कॉलेज दे विच पढ़दा सी, पढ़ाई करके सब तो टॉप ते आया ते माँ बाप सामने बैठे सन, सारे लोग सामने बैठे ने। अनाउंसमेंट हुई, कह लगे बच्चे ने सब तो ज़्यादा टॉपर किया है। बुलाया गया, उन्होंने आख्या भी तू इस कामयाबी पिछे किनू मनदा है, भी इस कामयाबी पिछे किंदा हथ मनना है? उन्हें आख्या केवल तो केवल गुरु नानक देव महाराज जी का। वो कहता जे अज मैं कामयाब होया तो जपजी साहब के गुटके कारण, जे मैं जपजी साहब के दीदार ना करदा तो शायद मेरा जीवन जिहड़ा है वो खत्म ही हो जाना सी, मैं अपने आप को खत्म ही कर लेना सी। अज जो मैनू एक कामयाबी मिली है ये गुरु नानक देव पातशाह जी की कृपा नाल मिली है। सो गुरु प्यार वालिओ यतन करिया करो कि गुरबाणी नाल जुड़ो, सतसंगत करो, अपने बच्चों को प्रेरणा दे के बाणी नाल जरूर। बड़ी खुशी हुई मैनू कि भैणां ने जाप करवाए। ये बड़ी खुशी वाली गल है कि बच्चियां नूं गुरु साहिबां दे नाम दसने, पंजां प्यारियां दे नाम दसने, उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने राग ने इन्हां बारे दसना, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे विच किन्ने शब्द ने, किसने ये बाणी किन्ने रागां विच रची, कदों रची गई, की कारण सी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी रचन दे। ये सारे सवाल जिहड़े ने इन्हां दे जवाब सानूं आउणे चाहीदे ने। जे सानू कल नूं साडा बच्चा पुछ लवे या समाज में कोई बंदा किसी अदर दूजी किसी बरादरी का बंदा होवे, किसी दूजे मजहब का बंदा होवे, सानू आके पुछ लवे भी गुरु ग्रंथ साहिब किन्ने राग ने, तो सानू पता होना चाहिए। सो गुरु प्यार वालिओ, गुरु पातशाह जी कृपा करन, रहमत करन कि आपां सदा सतसंगत करिए, यतन करिए, सवेरे शाम गुरु पातशाह जी दर ते हाज़री भरीए। भावें एक छिण वास्ते आओ, बस भावें नतमस्तक होने वास्ते आओ, पर वड्डे भागां वाले हो जे तुसीं समा कढ के गुरु पातशाह जी के दर ते आउंदे हो। मैं दावे नाल कहना गुरु के दर ते आया होया मनुख कदी खाली नहीं जाता। महाराज कृपा करन, बख्शिश करन। आप सारियां संगतां दा धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का कोटान कोट शुकरा। समूह प्रबंधक कमेटी सारियां दा धन्नवाद। महाराज कृपा करन, आप सारियां दा प्यार इस तरह मिले। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करें,
ਇਹ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ